नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उच्च सदन के 252वें सत्र में 100% से ज्यादा कामकाज। सदन से 25 विधेयक चर्चा के बाद पारित। कोरोना महामारी और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भी हुई चर्चा। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी विधेयक पारित। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, कानूनों में बदलाव से होगी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित। और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को भी संसद की मंजूरी। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 भी राज्यसभा से पारित। नवंबर में कार्यकाल पूरा करने जा रहे सांसदों को दी गई विदाई। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। उच्च सदन के 252वें सत्र के दौरान 10 बैठकें हुई हैं। इस दौरान 25 विधेयक पारित किए गए और 6 विधेयक पेश किए गए। राज्यसभा के 252वें सत्र की उत्पादकता 100.47% रही है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों को कोरोना संकट के बीच विशेष बैठक व्यवस्था के तहत सदन का सत्र चलाने में सहयोग के लिए बधाई दी। I wholeheartedly compliment all of you for making this success of this novel experiment. Honorable members, let me give a brief account of this session. During the 10 sittings, total of 25 bills have been passed and 6 bills have been introduced. The productivity of the House during this session has been 100.47% as against the scheduled available time of 38 hours and 30 minutes. The actual functional time of the House has been 38 hours and 41 minutes. While 3 hours and 15 minutes time of the House has been lost unfortunately due to disruptions, the House sat for an extra time of 3 hours and 26 minutes. I am happy to inform you that the new normal of high productivity witnessed during the last 3 sessions has continued during this session as well. As a result, the overall productivity of the last 4 sessions come to a praiseworthy 96.13%. This high productivity for 4 consecutive sessions is the best during the last 5 years. 22 hours 3 minutes time has been spent on discussing government legislative proposals during these 10 sittings. This comes to a record 57% of the total functional time of the House during this session. The significance of this time share spent on legislative business during this session comes out in sharp contrast when viewed against only 28% time spent on government bills over the years since 1952 when the House came into being. सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में कुछ सदस्यों की तरफ से किए गए असंसदीय व्यवहार पर भी बात की। साथ ही उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े संकल्प का भी जिक्र किया। There have been some areas of concern as well. We need to collectively ponder over these issues for making a difference in future. For the first time in the history of this August House, a notice for motion for removal of the Honorable Deputy Chairman has been given. It had to be rejected for reasons that I have already elaborated because it was a motion, not a resolution. And moreover, the rule of 14% advance notice is not followed. The developments in the House surrounding this unprecedented move have been deeply painful for all those who hold the stature and dignity of this August House dearer to their hearts. I don't want to go into the details of those unpleasant turn of events. All that I like to do is appeal to all of you and all of the other members who are not here from the depth of my heart to kindly ensure that such unseemly behavior is not repeated in future. I would like to remind all of you that in 1997 and 2012,
this August House has resolved that all members will uphold the dignity of the House by complying with the rules and procedures laid down. The House combinedly, they have taken almost a pledge that this House, honorable members, will uphold the dignity of the House by complying with the rules and procedure laid down. If we were to adhere to these resolutions, there will be order in the House. And when there is order in the House can function as the country expects it to function. It is the responsibility of all the members to ensure smooth functioning of the House so that we can fulfill our commitments to the people. इसके अलावा श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी तीनों विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया। उच्च सदन में उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा हुई। इसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कानूनों में बदलाव से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसी भी श्रमिक की ये नौकरी यदि छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से IR कोड में पहली बार री स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वह प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। हर मजदूर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब वो अनौरस नहीं रहेगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2-3 नई बातें हैं। हर साल हर मजदूर का मुफ्त चेकअप किया जाएगा। ये मुफ्त चेकअप ये बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ का कदम है। सबसे एक क्रांतिकारी कदम है जिस पर ध्यान नहीं गया लोगों का। नौकरी छूटने पर जो ESIS और जो EPFO का सदस्य है उसकी नौकरी जाने पर 3 महीने के लिए उसको आधा तनख्वाह मिलेगा। ये पहली दफा देश में ये बदलाव आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक स्वस्थ स्वरूप दिया गया है जिसकी मांग स्वयं ट्रेड यूनियन के बीच से आई थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। The code requires the employers to seek prior consent from the workers to perform overtime. It's a welcome, it's a good move. For the first time, legislative history, this code requires every employer to issue appointment letter, but it does not stipulate a remedy in case of non-compliance of it. Provision that promote delegation legislation must be relooked. They must be had quoted in Act itself and not left to be delegated on letter. पहले अलग अलग 25 कानून थे, अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, अलग अलग चीज़ों के डेफिनेशंस होते थे, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती थी, अलग अलग वर्किंग कंडीशंस के बारे में चर्चा होती थी। लेकिन अब जो है डेफिनेशंस, अथॉरिटी, वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी, ये जितनी चीज़ें हैं वो सब जो है एक जगह समाहित हो जाएंगी। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बाद ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। ये विधेयक विदेशी योगदान कानून 2010 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। विधेयक किसी भी संस्था के विदेशी अंशदान हासिल करने पर सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व तय करने का प्रयास करता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक किसी NGO के खिलाफ नहीं है, ना ही विदेशी अंशदान को रोकता है। उन्होंने कहा कि NGO विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ऐसे में विदेशी अंशदान में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। NGO को पैसा जिस कार्य के लिए मिले उसी कार्य में खर्च होना चाहिए। FCRA
एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है, इसको महत्व देने की जरूरत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए। यह निश्चित रूप से पारदर्शिता लाने वाला यह बिल न एनजीओ के खिलाफ है या न किसी के अहित में है। यह जरूर है कि वैसी संस्था को जरूर थोड़ा बुरा लगेगा जो पारदर्शिता को नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे एनजीओ जो पारदर्शिता के साथ जिस उद्देश्य से विदेशी अविदाय प्राप्त करते हैं, ऐसे सेवा भाव से जनहित में काम करने वाले ऐसी सारी संस्थाओं को यह सहयोग करने के लिए यह संशोधन है। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपने विचार और सुझाव रखे। सारी की सारी एनजीओ जो विदेशों से पैसा ले आती हैं, उनको स्ट्रीमलाइन होकर के जिस उद्देश्य के लिए ले आती है उस उद्देश्य के लिए खर्च करना पड़ेगा, लोगों के हित के लिए खर्च करना पड़ेगा, राष्ट्र के हित के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। I wholeheartedly support this bill as the policy impact would be beneficial to the country as a whole. But my sincerest request will be genuine NGOs should not be harassed by officials as the country may lose funds. तो जो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जिस चीज के लिए मिल रहा है, उसके कंटेंट पर, उसके प्रोग्राम पर, उसके स्कीम पर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अब मात्र जो है 20% हो। इसलिए बहुत अच्छा ये अमेंडमेंट है, बहुत अच्छा बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूं। वही लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 पारित हो गया है। विधेयक में भारतीय वित्तीय बाजार में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग को लागू करने से संबंधित उपबंध कर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान है। जब दो पक्ष एक दूसरे की देनदारियों का निपटारा इस तरह करते हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा देनदारी हो तो वो एक तय राशि का भुगतान दूसरे के पक्ष में करे तो उसे नेटिंग कहते हैं। इस बिल में प्रावधान है कि क्यूएफसी की नेटिंग उस स्थिति में लागू की जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट में नेटिंग एग्रीमेंट हो। बिल के प्रावधान दो क्वालिफाइड मार्केट भागीदारों के बीच क्यूएफसी पर लागू होंगे, जिसमें से कम एक पक्ष आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए या आईएफएससीए से रेगुलेटेड है। यह विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधान भारतीय वित्तीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे। Legislation will help us in evaluating risks far more in real-time basis, and actual risk assessment happens rather than a notional risk assessment based on the gross figures. It is the net which is important, otherwise the real value of money is locked up. So with this, just one bullet which I'm telling you, commodity derivatives such as electricity derivatives, oil derivatives, coal derivatives or gas derivatives, you can immediately imagine what are the kind of transactions which are going to get covered because of this legislation that this House is choosing to consider today. This bill, if passed, will have a very big bearing on the financial stability of India, and we'll have a buoyant bond market, as a result of which businesses will have greater affordable resources. लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया जाएगा। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को बड़ी संख्या में बोलते हैं और समझते हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल से उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले 1% से भी कम हैं।
जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 इस असंतुलन के दूर करने के एक प्रयास है, जिसके पारित होने से यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर की 98% आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्त होगा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदी एवं डोगरी बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत लंबी समय का डिमांड को सरकार फुलफिल करने जा रहे हैं। This language was being taught in schools there along with Urdu and Hindi, and suddenly when this language is being removed or not being officially recognized, this hurts the feelings of those Punjabis who are settled there. कि विश्वास और विकास सबका साथ, इसमें ये तीन और जोड़े जाए, पंजाबी, गुजरी और पहाड़ी सर, ताकि सब लोगों का विश्वास हम जीते। आज जो जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, इसमें जहां राजभाषा के रूप में 5 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसके साथ साथ इस बिल में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की भी बात कही गई। और इस समय हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और सदन का ये 252वां सत्र रहा, जिस दौरान हमने देखा कि 25 विधेयक पारित हुए, 6 विधेयक पेश किए गए और हमने देखा कि सभापति ने किस तरह से जो अमर्यादित व्यवहार रहा, असंसदीय व्यवहार पर भी चिंता जताई है। कुल मिलाकर इस सत्र को कैसे आंका जाएगा? देखिए प्रीति, ये जो सत्र है ये भारत के संसदीय इतिहास का एक अभूतपूर्व सत्र माना जा सकता है इस संदर्भ में, क्योंकि उत्पादकता के मामले में तो मतलब सर्वश्रेष्ठ सत्रों में ये है। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे विधायी कामकाज बहुत ही शानदार हुआ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि राज्यसभा जैसी, जिसको उच्च सदन कहते हैं, और जहां जो है जहां एक से एक नामी गिरामी सांसद हैं, और खुद सभापति ने पूरी इन घटनाओं को लेकर के जिस तरह चिंता की उस सभापति जी ने की, तो जो घटनाएं घटी हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन अगर आप समग्र रूप से देखेंगे, इस पर सभापति ने भी कहा, उस सभापति का पत्र भी बड़ा ही एक मतलब जिसको कहिए कि महत्वपूर्ण और बड़ा मार्मिक पत्र है, जो उन्होंने लिखा था राष्ट्रपति जी को भी और सभापति राज्यसभा को। तो समग्र रूप से अगर आप ये देखेंगे तो 10 बैठकों में भले ही प्रश्नकाल नहीं चला, लेकिन जिसको अनस्टार्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिन पर काफी महत्वपूर्ण संख्या में उसके जवाब जो है दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो डिबेट्स हुए हैं वो भी काफी डिबेट हुए हैं। लेकिन इसमें विधेयकों पर जब 25 विधेयकों की जो बात आपने की है उसमें बात करेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र और दूसरा श्रम सुधार, जिन पर काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था सुधारों का। उससे जुड़े हुए जो विधेयक पारित हुए हैं वो उम्मीद यही की जाती है कि वो उसके सामाजिक आर्थिक कायाकल्प में काफी महत्वपूर्ण कारक बनेंगे। और साथ ही साथ ये अगर आप देखेंगे 3-4 एस्पेक्ट उसके हैं जो 11 के 11 जो अध्यादेश थे जिनको रिप्लेस करने वाले, वो सारे कहीं न कहीं से अगर आप देखेंगे तो जो कोरोना संकट है उससे निपटने के साथ साथ जो है कुछ ऐसे सेक्टर जिन पर जो है फोकस है, मतलब आगे टिके रहने का, कृषि क्षेत्र उसमें एक महत्वपूर्ण है, उन सबको ठीक ठाक करने के लिए, उनको एक बेहतर दिशा देने के लिए जो विधायी कामकाज हुए हैं वो उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले समय में एक नई भूमिका जरूर इसमें बनेगी। जी प्रीति, बिल्कुल, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं अरविंद जी, श्रम सुधार से संबंधित हमने देखा जो 3 अहम विधेयक हैं उनको संसद की मंजूरी मिल गई और लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी तीनों विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया। आज के कामकाज में अगर देखें तो कानूनों में बदलाव से श्रमिकों के खास तौर से स्वास्थ्य की बात करें और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो कितना सुनिश्चित होगा ये? देखिए, जो श्रम सुधारों से जुड़ा हुआ मामला है वो मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि मैं उस बैठक में था। प्रधानमंत्री ने श्रमेव जयते का नारा देने के साथ ही साथ कहा था कि श्रम सुधार बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं भारत जैसे देश में श्रम सुधार बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है
और पीवी नरसिंह राव से लेकर के जितनी भी सरकारें रही उन्होंने श्रम सुधार की कोशिश की, लेकिन एक आम सहमति नहीं बन पाई। और इस बीच में जब आप श्रम सुधारों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पक्ष हैं, लेबर यूनियंस हैं और बहुत स्टेक होल्डर्स हैं जो कारखानादार, कारखाने के मालिक हैं। इन सब से एक पूरा संवाद करने के साथ ही साथ ये सरकार जो बिल लेकर के आई वो अपने आप में एक व्यापक सुधार की दिशा। अभी इतने तरीके के कानून और इतने तरीके के कॉम्प्लेक्स थे उसमें कि उसमें किसी भी एक श्रमिक को अगर राहत लेने जाना होता था तो थक हार करके वापस लौट आता था जो है। इसीलिए सरकार की ओर से कोशिश ये की गई कि जिस तरीके की परिस्थितियां एक रूपता ले आने के साथ साथ आसान हो और उसके अलावा उसके जो अलग अलग संहिताएं हैं उसके हिसाब से संहिताबद्ध किया गया। और आज हालत ये है कि उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठे, सवाल विपक्ष की ओर से भी कई तरह के उठे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में इनको बहुत ही व्यापक, जो कि स्टैंडिंग कमेटी लेबर की है जिसमें भर्तृहरि मेहताब जिसके अध्यक्ष हैं, तो ये वो एक इन डेप्थ स्टडी के बाद जो है लोकसभा में आपने देखा कि इस पर चर्चा हुई और उसके पहले भी कमेटियों ने बहुत बृहद चर्चा की है और ये बिल आया है। तो मुझे लगता है कि ये श्रम सुधारों की दिशा में एक व्यापक कानून बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। नवंबर में कार्यकाल पूरा करने जा रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा के कुछ सदस्यों को आज उच्च सदन में विदाई दी गई। इनमें बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, बीएसपी के राजा राम और वीर सिंह, कांग्रेस के पीएल पुनिया और राज बब्बर शामिल हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल पूरा करने जा रहे सदस्यों के योगदान की सराहना की। The retiring members will be leaving this august house with loads of invaluable experiences and memories which will continue to guide them in their noble path of public service. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this house and the parliamentary committees which they represented. I place on record my appreciation and also the appreciation of the house for the valuable contribution and service rendered by them with the utmost dedication and fervor to further the cause of democracy. Though some members might be re-elected, I hope this House will certainly miss those who would not be coming back immediately. I hope that the retiring members will continue to serve the people in different capacities with some same zeal, enthusiasm, vigor and spirit of service which they have exhibited in this House. So I wish all the retiring members good health, happiness and many more years of service to the nation. वहीं नवंबर में कार्यकाल पूरा करने जा रहे बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया। इस सदन में आना एक सौभाग्य की तरह था। राज्यसभा, उसके पहले मैं लोकसभा में था। ये 12-13 साल जो लोगों का आशीर्वाद मिला, जो यहाँ के नेताओं का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं सभी का ऋणी रहूँगा हमेशा। एक चीज़ मैं रोज मांगता हूँ भगवान से कि मेरा देश स्वच्छ रहे, शिक्षित रहे और शक्तिशाली रहे। ये मेरी कामना है। जय हिंद। God bless you, Neeraj Shekhar. We'll be really missing you and all the other honorable members who are retiring in November. वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए। सदस्य भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कार्यों पर शोध के लिए संस्थान की स्थापना की मांग की। बीजेपी के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर डीपी वत्स ने कोर्ट में पिछले काफी समय से लंबित विकास परियोजनाओं का मामला उठाया। बीजेडी की ममता मोहंता ने कुड़मी, महतो आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। वहीं पीडीपी के नजीर अहमद लवाय ने जम्मू कश्मीर में होमगार्ड समेत सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करके उनके वेतन बढ़ाने की मांग की। दिनकर भारतीय भाषा के बड़े कवि और सांसद, प्रखर राष्ट्रवादी भी रहे हैं, तो क्यों ना कि जो भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई पुस्तक लिखते हैं
भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई रचना करते हैं, हम 23 सितंबर को संसदीय पुस्तकालय की ओर से दिनकर जी के नाम पर चेयर बना करके उन सब सांसदों को जो भारतीय भाषा में लिखते हैं एक प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज है 23 सितंबर, इसलिए मैंने उनको समय दिया और जो उन्होंने विषय रखा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आशा करता हूँ सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। दशकों से लटके हुए कोर्ट केसेस की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ दिलाना चाहता हूँ, खासकर रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स। कोर्ट केसेस की वजह से इम्पोर्टेंट रेल और रोड प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं और जब मैंने चेक किया तो एक प्रोजेक्ट तो 45 ईयर्स से लटका हुआ है। ऐसे में आपके माध्यम से मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन लेके आए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का टाइम बाउंड निपटारा करें। 1956 सितंबर से कुडमी महंत संप्रदाय एसटी लिस्ट से बाद हुए। क्यों और किस लिए हुए ये तो पता नहीं, लेकिन इस भूल के वजह से आज भी कुडमी महंत संप्रदाय की ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी राज्यों के बहुत सारे कुडमी भाई बहन एसटी के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ लेना चाहता हूं कि एक तो इन लोगों को सरकारी महकमों में मुस्तकिल किया जाए, दूसरा इनका तनख्वाह वागजार किया जाए क्योंकि वो कसम पुरसी की हालत में है। होमगार्ड जो एक महीने में 9 दिन ड्यूटी देते हैं और बाकी 21 दिन बेकार पड़े हैं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड trilateral highway is the need of the hour. This project is the part of most ambitious Indian looked at policy. I believe this government immediately look at the matter and they do the needful to complete the project immediately. राज्यसभा में आज विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने कई सुझाव दिए। मनोनीत सांसद डॉक्टर सोनल मान सिंह ने फ्रीलांस कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। बीजेपी सांसद विकास महात्मे ने दूरदराज के गांव में इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। I want to draw the attention towards the internet connectivity provided to villages through optical fiber is not being used because of non-payment of monthly bills by authorities like Gram Panchayat. Thank you. Sir, I shall like to congratulate the government for providing optical fiber network in remote villages. I speak on behalf of the millions of artists, Indian performing artists, freelance who are in dire circumstances since pandemic lockdown, now for going on for months and we don't know when it will stop. So need of urgent intervention by the government for economic package and financial help through the Ministry of Culture, sir. This is a very dire circumstance and some are even dying, but we fall between all the stools. So far there has been no financial help at all, sir. Through you, I wish to urge the government. MGNREGA और 14 and 15 फाइनेंस जो पैसा यहाँ से जा रहा है उसका प्रॉपर मॉनिटर किया जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय से, और बीच में कोई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मन मर्जी में प्रेसिडेंट काम कर रहा है। इसको देखने के लिए मेरा धन्यवाद कामा प्रसाद जी। Government of Maharashtra has been in constant correspondence with the central government requesting for the change of nomenclature of High Court of Bombay as High Court of Mumbai. Our state government has sent not less than 15 letters in last 7 years, and the matter has been constantly raised by our legislators in Maharashtra Legislative Assembly, demanding expeditious action on their demand for change of name to High Court of Mumbai. Sir, I lay it on the table of the House. Thank you, Anil ji. और इसी के साथ फिलहाल राज्यसभा समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।